دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کا فیصلہ واپس لیے جانے کی خبر ملتے ہی منصوبے کے خلاف اس وقت سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ ہو رہی ہے۔ چنگاری لیتے ہوئے بہت سارے ایشوز میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور اسی طریقے سے آگے بھی یہ متحرک رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دریا بڑا اہم ایشو رہا اور آگے بھی ہمارے لیے اہم ایشو رہے گا اگر کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے۔ اور اس میں جن دوستوں نے سول سوسائٹی نے بالخصوص یہاں پہ خیرپور بار، سکھر بار، جیکما بار، لاڑکانہ بار، لاڑکانہ ہائی کورٹ بار، سکھر ہائی کورٹ بار اور ہماری تمام سندھ بار کاؤنسل وائس چیئرمین سب نے ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا اور ہم آج بھی اپنے تمام ایشوز پہ ساتھ کھڑے ہوئے، ہر ایک چیز اپنے تسلسل سے چلتی ہے۔ اب میں سرفراز بیتلو صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی، ان سے مزید بریفنگ کے لیے گزارش کروں گا آپ سب کو تاکہ وہ بریف کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو تمام سندھ کے وکلاء اور سندھ کے عوام کو ان کی جدوجہد پہ اور اس ایک یکسو اور یکسانیت پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام لوگ سندھ کی عوام، سندھ کے وکلاء اپنے باہمی چھوٹے بڑے جو اختلافات ہیں ان سب کو بھلا کے ایک جسم ہو کے، ایک آواز ہو کے سندھ دریا کی حفاظت کے لیے اور سندھ کی زمین کی حفاظت کے لیے نکلے اور ان کی طویل جدوجہد، یہ تاریخ میں ایسے کم مواقع آپ کو ملیں گے کہ اتنی لمبی اور اتنی بڑی تعداد کے لوگ یہاں پہ پورے سندھ کے اندر دھرنے دے کے بیٹھ جائیں اور پورا ملک منجمد ہو جائے۔ میں بالخصوص شکر گزار ہوں جو یہاں کے ہماری میزبان باریں ہیں، جن میں ہمارے قربان ملانو صاحب صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سکھر، ہمارے سکھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر و سیکریٹری، اور جو خیرپور ڈسٹرکٹ بار کا صدر اعجاز چانڈیو اور اس کے جو سیکریٹری ہیں جمن سہتو، اسی طرح سے ہمارے لاڑکانہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اطہر عباس سولنگی صاحب اور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہمارے اسماعیل ابڑو صاحب، جیکوباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مظفر رند صاحب اور اس کی پوری ٹیم، اسی طرح سے عبدالغنی بجارانی صاحب جو ممبر سندھ بار کونسل ہے، جنہوں نے جب سے یہ ہماری جدوجہد شروع ہوئی ہے، پہلے دیرہ موڑ پہ پھر گولہ موڑ پہ بغیر کسی خوف و ہراس کے مسلسل اپنے تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے دھرنا جاری رکھا اور وہ اس کے اوپر 2 مرتبہ حملہ ہوا، اس کے باوجود وہ دھرنا ہمارا پسوا نہیں ہوا۔ آج میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ دوستوں کے عزم بہت بلند تھے اور ان کے ارادے مضبوط تھے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے صدر لیاقت ملانو اور وہاں سے ہمارے جو ممبر سندھ بار کونسل ہیں ہمارے عبدالرزاق مہر صاحب اور ذوالفقار جلبانی صاحب، جنہوں نے وزیر گھوٹو صاحب اور دیگر تمام وکلاء جن کا گھوٹکی، میرپور اور تمام دوستوں نے جہاں پہ وہ زور لگایا اور وہ دھرنا کامیاب کیا وہاں پہ کموں شہید پہ۔ اسی طرح سے خیرپور کی جو تحصیل باریں ہیں، جن میں تحصیل ٹھری میروا کی مہتاب شر صاحب اس کے صدر ہیں، اس کی پوری ٹیم، گمبٹ کے جو ہمارے صدر ہیں فدا حسین جامڑو صاحب، اس کی پوری ٹیم، اسی طرح سے تمام دیگر بار ایسوسی ایشنز، ملیر بار ایسوسی ایشن بالخصوص اس کے جو سیکٹری اور صدر ہمارے ساتھ مسلسل رہے، سجاول بار کے صدر اور سیکٹری تمام دن یہاں پہ، ہمارے سجاد خواجہ صاحب اور آفتاب پنور صاحب یہاں پہ مسلسل ہمارے ساتھ رہے، بدین ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکٹری ہمارے ساتھ رہے، ہمارے امیر آزاد پنور صاحب جو اس کے صدر ہیں، سیکٹری ہیں، اسی طرح سے میرپور خاص ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب میر پرویز ٹالپور صاحب اور اس کی پوری ٹیم، اور اسی طرح سے جو میرپور خاص ڈسٹرکٹ بار ہے اس کی پوری ٹیم،
इसी तरह से सिंध के तमाम अजला, मैं फ़र्दन कराची बार के हमारे सदर जनाब आमिर नवाज़ वड़ाए जो इस टीम के मुख्य आप कहें रोल कहें, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि हम तमाम वकला ने इस चीज़ का तयन किया था कि हम सारे एक जिस्म एक आवाज़ चल के रहेंगे। आमिर नवाज़ वड़ाए साहब की कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते। इस तहरीक में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया है, रहमान कुरैशी साहब ने प्ले किया है, और इसी तरह से मैं आपको बताऊं हमारे काज़िम महेसर साहब, अमर असीम पंवर साहब और सब्ज़ोई साहब, और यहाँ पे मेज़बान जहाँ पे आज हम खड़े हैं वो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़ाती ज़िम्मेदारी, ना वो किसी बाहर के इस वक्त इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ना कोई उसके ऊपर, और लेकिन सिंध के काज के लिए यहाँ पे हमारे खैरपुर बार के साबिक सदर, मुतअद्दिद बार साबिक सदर रहे सैयद जाफ़र अली शाह हमारे साथ खड़े हैं इधर, और इस मेज़बानी में कुर्बान मलानो साहब के साथ उन्होंने कंधे में कंधा मिलाया है, हम उनको भी खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं। मैं साथ ही साथ ये बताता चलूँ, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की पूरी टीम, जिसमें मेरे सेक्रेटरी मिर्ज़ा सरफराज, मेरे नायब सदर राहब लाखो साहब, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी वसीम सैफ खोसो साहब और जाहिदा कमाल अलवी साहबा, मेरे ट्रेजरर अतहर मेमन साहब और दीगर तमाम हमारे जो मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे दोस्त, इसी तरह से हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अयाज तुनियो साहब और उसकी पूरी टीम यहाँ पे सारे दिन हमारे साथ पूरी जदोजहद में मुसलसल शामिल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के सदर जनाब अशरफ खोखर साहब और उनके सेक्रेटरी जनाब बाबर मेमन साहब और दीगर पूरी टीम जो उनकी है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार और हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसी तरह से सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब हमारे जनाब शफकत राजपूत साहब और तमाम मेंबरान सिंध बार काउंसिल, यासिर शर साहब जो खैरपुर से हैं, वो यहाँ पे होस्ट बार में उनका रोल है, यहाँ पे कलीदी रोल प्ले किया है। खैरपुर बार ने यहाँ पे होस्टिंग करने उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए और साथ ही साथ यहाँ पे अपने खैरपुर बार के सदर और सेक्रेटरी के साथ मुसलसल हमारे धरनों में उन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने में पेश रहे। और तमाम बारें कुछ जिनका जैसे टंडो आदम है उनके सदर, टंडो अलहयार के सदर और सेक्रेटरी टंडो मोहम्मद ख़ान, इसी तरह से हमारे जो थरपारकर है, मिट्टी है, सांगड़ है, तमाम डिस्ट्रिक्ट चाहिए हैं, ठट्ठा और सजावल का दोबारा मैं इसलिए नाम लेता हूँ कि उनकी ज़मीनों का इशू ऑन गोइंग है। तो ये तमाम दोस्तों और तमाम बार के मेंबरान हमारे तकरीबन 45,000 वकला की ये जदोजहद और सिंध के तमाम अवाम, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी जमातें, कौम परस्त जमातें, मजहबी जमातें, सिंध की अक़लियतें, हिंदू बरादरी, मसीही बरादरी व दीगर तमाम सिंध के मकीन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी। आप देखें इस वक्त टाइम सुबह के 4:45 बजे हैं, आप तमाम सहाफ़ी बरादरी यहाँ पे हमारे साथ हैं। आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और इस तमाम जदोजहद में अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ी शान कामयाबी अता की। और वफाक की तरफ से जो CCI की मीटिंग 2 तारीख को थी, हमारे कल के इजलास के बाद उन्होंने वो आज कॉल की और आज CCI की मीटिंग के बाद जो उन्होंने अपना फ़ैसला जारी किया है उसमें उन्होंने 6 कैनालों को या सिंध के अंदर बनने, सिंधु दरिया के ऊपर बनने वाले तमाम नए कैनाल सबको मनसूख किया है और आइंदा कोई भी कैनाल कंसेंसस के बगैर नहीं बनेगा। ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरसा एक्ट जो है वो मेजॉरिटी के बुनियाद पे था। ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो फितने की पूरी जड़ थी, ये मेजॉरिटी के बुनियाद पे इशू हुई थी। सिंध ने उसमें मुखालफत की, तीनों सूबों ने और वफाक ने उसके हक़ में वोट डाला और वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो गया जिसने पूरे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया। आप देखें आज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी गैर मुस्तहकमी का शिकार वो इस अरसा के नाआकबत अंदेशाना फ़ैसले का नतीजा है, वरना सिंध पुरसुकून थी। सिंध को बेसुकून करना, पूरे पाकिस्तान को परेशान करने में अरसा की इस कार्रवाई का हम उसकी मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ हम CCI के इस फ़ैसले का खैर मक़दम करते हैं जो तमाम सूबाई हुकूमतों ने और वफाक ने मिल के लिया है। हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अवाम नास के तकलीफ़ का
ख़याल करते हुए और सिंध के अवाम की बिलखुसूस बेचैनी का ख्याल करते हुए ये आज का जो फ़ैसला लिया है। और उसमें जो हमारा डिमांड थी, आप अगर हमारे रेजोल्यूशन कराची बार के रेजोल्यूशन को देखेंगे जो उन्होंने 12 अप्रैल को किया, या उससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार ने जो 11 अप्रैल को किया, हमारी डिमांड ये थी कि हम लोअर रिपेरियन हैं, ये कोई भी अपर रिपेरियन स्कीम लोअर रिपेरियन स्कीम के कंसेंट के बगैर नहीं होनी चाहिए। उस बात को उन्होंने तस्लीम किया और अब ये कहा है कि कोई भी वाटर स्कीम इंडस रिवर के ऊपर सवाए कंसेंसस के नहीं बनेगी, जिसका मकसद ये है कि जब जब सिंध मुखालफत करेगा वो स्कीम रुक जाएगी, नहीं बनेगी। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने वकला बरादरी के शक्ल में सिंध के अवाम को, सिंध के तमाम मकीनों को दी है। मैं पूरी सिंध को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस अपनी वकला बरादरी को। और अब आज आल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ये ऐलान करती है कि कल तमाम सिंध के लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बार एसोसिएशंस में भी आज सुबह हो गई, कल से मेरी मुराद आज ही है, उसको सेलिब्रेट करेंगे बार एसोसिएशंस में इसका। और हम ज़मीन का हमारा दूसरा, हम 2 एजेंडे लेके, जो कंसेंसस के साथ कुछ हमारी बार एसोसिएशंस के एजेंडे 2 से ज़्यादा थे, लेकिन हम सब लोग 2 एजेंडों पे कंसेंसस थे कि 2 डिमांड्स हैं हमारी। एक कैनालों की मनसूखी, दूसरी कॉरपोरेट फार्मिंग की मनसूखी। दूसरे हवाले से हमने एक 11 रुकनी वकला की कमेटी तश्कील दी है, जिसके साथ हमारे कुर्बान मलानो साहब और अयाज़ तुनियो साहब के साथ सिंध हुकूमत इस वक्त राब्ते में है। और वो अगले 24 घंटों के अंदर हमारे इस 11 रुकनी कमेटी से सक्खर में मुलाकात करेगी और उसके कैंसिलेशन के लिए अपना लाएअमल अख्तियार करेगी। इस पे कोई दो राय नहीं है, हम इस पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि इस पे कोई और इसका हल निकलेगा। हल इसका कैंसिलेशन है, लेकिन उसका तरीक़ेकार जो हमारी 11 रुकनी वकला की वो माहिर लोग हैं कानून के, वो सिंध गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें हमारे वो अपनी तरफ से जो भी दें, लैंडर मेंबर, सीनियर मेंबर दें, और या चीफ मिनिस्टर हो उस कमेटी में, या मिनिस्टर इरिगेशन और लैंड हो, ये सारे मिलके ये कमेटी अगले 24 घंटों में सक्खर में मुलाकात करेगी। और इस तमाम डेवलपमेंट की रोशनी में हम सिंध के अंदर हमारा ये मरकज़ी धरना बबरलो में जारी रहेगा। कल 12 से 4 बजे के दरमियान हमारी एक और मीटिंग मुतवक्का है। लेकिन इसके अलावा सिंध के अंदर जितने भी धरने हैं वकला बरादरी के, और हम कहेंगे, अपील करेंगे अवाम को भी कि जो अवाम के भी धरने हैं सारे ख़त्म इस ऐलान से फिल फोर, चाहे वो हमारा कमू शहीद वाला धरना हो, या हमारा वो जो देरा मोड़ वाला धरना हो, गोला मोड़ कंदकोट वाला धरना हो, या मलीर के अंदर या कराची के अंदर कोई वकला बरादरी का धरना है, ये सारे धरने इस ऐलान के इफ़ेक्ट से फिल फोर ख़त्म हो जाएंगे। एक धरना, ये हमारा मरकज़ी धरना यहाँ पे बबरलो में कल, आज मतलब आज ही हो गया है, आज जारी रहेगा 12 बजे तक। हमारे ये हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक जो राब्ता किया गया है कि वो उनकी लोग आएंगे और आके हमारी 11 रुकनी कमेटी से मीटिंग करेंगे। उसके बाद इस धरने के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बाकी हम ये वाज़ेह करते चलें कि इस ऐलान के बाद अगर सिंध के किसी कोने में किसी शख्स ने धरना दिया, वकला उसका न प्रोटेक्शन के ज़िम्मेदार हैं, न उसके लिए कोई और अपना लाएअमल तैयार करेंगे, वो अपने रिस्क पे देंगे। हम सबको अपील करते हैं कि क्योंकि वकला लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं, और हमने यूनानिमसली कंसेंसस के साथ ये ऐलान किया है कि सवाए बबरलो के सारे धरने विद इमीडिएट इफ़ेक्ट हम ख़त्म करते हैं, ताकि जो अवाम नास की भी तकालीफ़ हैं वो भी ख़त्म हो, और जो वफाकी हुकूमत की जो ये एक खुश आइन पेश रफ्त हुई है उसको भी हम आनर करें, सेलिब्रेट करें। और मज़ीद इस बारे में हमारे भाई आमिर नवाज़ वड़ाई साहब बात करेंगे, फिर कुर्बान मलानो साहब बात करेंगे, फिर हमारे सैयद जाफ़र अली शाह बात करेंगे, फिर अयाज़ तुनियो साहब बात करेंगे। 2 अल्फाज में आपके साथ अपनी मज़ीद इसके अंदर ऐड करेंगे। और सैयद यासर हुसैन शर साहब, एजाज़ चांडी साहब मुख्तसरन आपसे बात करेंगे। उसके बाद अगर किसी का सवाल होगा तो हम जवाब देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम विफाक का ये जो अमल है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हम इस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो टाइम पीरियड था 2 मई से पहले किया,
اور معاملات کو حل کرنے کی ایک پازیٹیو پیش رفت کی اور اس کو حل بھی کیا، لیکن ابھی بھی ہمارے دوستوں کو کچھ ریزرویشنز ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کنسنسس، یہ نہیں ہونا آل چاہیے۔ سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کا ببرلو بائی پاس کے سوا دیگر تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ خیرپور میں آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کا ببرلو بائی پاس کے سوا دیگر تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ وکیل رہنما سرفراز میتور نے کہا کہ متنازع کینال منصوبے کا خاتمہ ہم سب کی کامیابی ہے، تمام ساتھی تنظیموں کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کا ببرلو بائی پاس کے سوا دیگر تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔